Hello students, this is Dr. Vijay Zwar. Welcome to Anand Tutorials. Today's lecture is all about periodic classification of elements, chapter number 2, science 1. Periodic table, periodic classification of elements एक easy chapter है और दूसरी important बात ये है कि ये काफ़ी important है आप लोगों को फर्दर स्टैंडर्ड्स के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल 11th 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और वो सब इसी पे बेस रहता है, ये इसका बेसिस है। तो ये हमको अच्छे से समझ लेना है। स्कोरिंग है चैप्टर ये। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अभी हमको जितने एलिमेंट्स पता है तो वो सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में पीरियड्स में डिवाइड करना उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो ये सारी कोशिशें बहुत पहले से चालू है। जस्ट लाइक ये आप देख रहे हैं कि 1817 से लेके अब तक वो चालू ही है क्लासिफिकेशन, और उसको हम क्या रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम लोग डोब्रिनर्स ट्रायड। डोब्रिनर्स ट्रायड में क्या है, German scientist Dobriner suggested that the properties of the element are related to the atomic masses, and he made a group of three elements each having similar chemical properties, called them triads. तो ये triads बताया गया। He arranged the three elements in the triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to mean of two atomic masses of other two elements. However, all the known elements could not classified into डोब्रिनर्स ट्रायड। अभी ये देखो, जैसे हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया, तो इसमें क्या कर लिया इसने, एटॉमिक मास का मीन ले लिया। आपको सोडियम का ये लेने का, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का है, तो हम क्या करेंगे, लिथियम और पोटेशियम ले लेंगे, उनका एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मीन निकालेंगे। तो एक्चुअल मास कितना है 23, ये निकल रहा है 23, ये करेक्ट है। फिर दूसरा एक कैल्शियम और बेरियम का एवरेज निकला 88.7, यू कैन सी दैट इट इज 87.6, मतलब डिफरेंस आ रहे हैं अभी। अब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में हमने ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का लिया, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो हमको ब्रोमीन का मिल गया, ब्रोमीन 81.2, बट एक्चुअल मास आपको 79.9 दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंसेस है, ये कोई परफेक्ट नहीं। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो इतना कुछ सही नहीं रहा। उसके बाद में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlated atomic masses of the elements to their properties in a different way. In year 1866, Newlands arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses, and it started with the lightest element hydrogen and ended up with thorium. We found that every eighth element had properties similar to those of first. For example, sodium is the eighth element from lithium, and both have similar properties. Also, magnesium shows similarity to beryllium, and chlorine shows similarity with fluorine. Newlands compared this similarity with the octaves in the music. He called the similarity observed in the eighth and the first element. Many limitations were found in Newland's octave. This was found to be applicable only up to calcium, and the Newlands fitted all known elements in the table 7 into 8, that is 56 boxes, and Newland placed two elements each in the box to accommodate all the known elements in the table. For example, cobalt and nickel, Ce and La, and moreover, he placed some elements with the different properties under the same note. तो ये दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल केस। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इस चीज़ को देखने, यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा 1-2 मार्क के लिए। अभी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल इज इम्पोर्टेंट। देखो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलिव डेवलप periodic table of the elements during 1869 to 1872. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements, and Mendeleev considered fundamental property of elements, namely atomic mass, as the standard and arranged 63 elements known at that time in the increasing order of their atomic masses. Atomic masses के basis पे चल रहा है ये काफ़ी important है हमारे लिए। Then he transformed this into the periodic table of the elements in accordance with physical and chemical properties of these elements. तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
इसने एक लॉ दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये फिर वापस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये फिर वापस आ जाएगा. तो इसने ग्रुप बनाया. अब ये तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी दिखाई देता है. तो एक ग्रुप में रहने वाली चीज़ें बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाती है. The vertical columns in the Mendeleev periodic table are called groups, while horizontal rows are called periods. अब ये कॉन्सेप्ट सेम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी. तो there are some vacant places in the Mendeleev's periodic table. In some of these places, the atomic masses are seen to be predicted. अभी merits of Mendeleev's periodic table देखो. Science is progressive and there is a freedom in the science to revise the old inference by using more advanced means and methods of doing experiments. So experiment. These characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. अभी देखो, Mendeleev's periodic table demonstrates the following merits. कौन से? The atomic masses of some elements are revised so as to give a proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, previously determined atomic mass of beryllium was 14.09 and was changed to the correct value of 9.4. Beryllium was placed before boron. Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then, and three of these unknown elements were given names: eka boron, eka aluminum, and eka silicon, from the known neighbors, and their atomic masses were indicated as 44, 68, and 72 respectively. Not only this, but the properties were also predicted. Later on, these elements were discovered. Later on, these elements were discovered and named as scandium, gallium, and germanium, respectively. And the properties of the element match well with those predicted by Mendeleev. अब ये उस जमाने की बात है, बहुत पुराने. उस वक्त मेंडलीव ने ये टेबल बनाया और वैकेंट प्लेसेस रखी और उसमें फिर उसने वो प्रिडिक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज, और प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर निकली. तो दिस वाज द सक्सेस ऑफ मेंडलीव फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. एंड उसके बाद में क्या है? देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन द मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. However, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered toward the end of the 19th century, Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table, in which the noble gases were fitted well. तो ये सारे मेरिट्स है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की. ये हमको समझ में आने चाहिए. इसमें से थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है एक आध दूसरा. अब यहाँ पे नेक्स्ट है डीमेरिट्स. तो डीमेरिट्स में क्या कहा गया? द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in the Mendeleev's periodic table. अब कैसा है कि अगर एटॉमिक मास सेम है कोबाल्ट और निकेल, देन उसको कहाँ रखा जाए, किस सीक्वेंस में रखा जाए? दिस वाज द प्रॉब्लम. Isotopes were discovered long after Mendeleev put forth the periodic table, as isotopes were the same chemical properties but different atomic masses. A challenge was posed in placing them in the Mendeleev's periodic table. अब क्या है? इसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर्टीज सेम है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट है. उसको हम आइसोटोप के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. अब उसको हम कैसे प्लेस करेंगे? ये एक डीमेरिट है. When the elements were arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in the atomic mass do not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. अब दो heavy elements में masses का difference ये regular होना चाहिए, masses का difference, तो वो ये regular नहीं था. regular नहीं था इसके कारण यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी. पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है? हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विथ हैलोजन. For example, molecular formula of hydrogen is H2 and the molecular formula of fluorine and chlorine were F2 and Cl2 respectively. In the same way, there is a similarity in chemical properties of hydrogen and alkali metals. There is a similarity in molecular formula of compounds hydrogen, alkali metals, that is Na, K, etc., formed with the chlorine and oxygen.
On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals और इन द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस. तो ये हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करने का इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इसमें दिखाई देता है आप लोगों को. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंडलीव्स. अब यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है. तो ये किसने किया? इन 1913 English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiments done using X-ray tube that the atomic number Z of an element correspond to the positive charge on the nucleus or number of protons in the nucleus of the atom of that element. This revealed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass. Accordingly, the statement of the modern periodic table was stated as follows. Properties of elements are periodic function of their atomic numbers. अब ये सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस है पहले के साइंटिस्ट ने जो प्रपोज किया था और मोजली ने जो प्रपोज किया है. वो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसने क्लासिफिकेशन किया और पहले एटॉमिक मास के भरोसे होता था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इट्स a long form of the periodic table. Up structure of modern periodic table. Structure of modern periodic table is very similar to that of Mendeleev's. तो क्या किया उसने? 18 vertical columns. 18 vertical columns in this table are groups 1 to 18. कितने ग्रुप्स हैं? 18 groups are present in that, and arrangement of the periods and groups resulted in the formation of boxes. अब पीरियड्स कैसे रहते हैं? पीरियड्स कॉलम के फॉर्म में रहते हैं, आई एम सॉरी, ग्रुप कॉलम के फॉर्म में रहते हैं और पीरियड्स रोज के फॉर्म में रहते हैं. तो ये रोज और कॉलम क्रॉस होके आपको बॉक्सेस मिलेंगे. तो बॉक्सेस में हम लोग एकोमोडेट करेंगे एलिमेंट्स को. अपार्ट फ्रॉम these 7 rows, 2 rows were shown separately at the bottom of the periodic table, and these were called lanthanide series and actinide series respectively. So there are 118 boxes in the periodic table including the 2 series. अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको कि ये क्या है. दिस इज ग्रुप, इसको हम ग्रुप कहेंगे. और ये हॉरिजेंटल जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे हम? पीरियड्स. तो ग्रुप्स कितने हैं हमारे? 1 to 18 ऐसे ग्रुप्स हैं. और ये पीरियड्स कितने हैं? दिस इज 1 to 7, मतलब आप समझ लो दिस इज 7. ये है. इसके नीचे 2 और चीज़ें हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, वो सेपरेटली प्लेस किए गए. तो इस तरीके से आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलेगा. अब इसमें और क्लासिफिकेशन दिया है, तो वो क्लासिफिकेशन ये तो ब्रॉड हो गया एकदम, कैसा स्ट्रक्चर है ये. द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. कौन से ब्लॉक्स में डिवाइड किया है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. S block contains group 1 and 2. Group 13 to 18 constitute P block, and group 3 to 12 constitute of D block. तो ये देखिए आप, इसके लिए कैसा, S के लिए कितने ग्रुप्स हैं? 1 and 2. उसके बाद में क्या कहा गया? ग्रुप 13 to 18. 13 to 18 कहाँ तक है? क्या है? P block. दिस इज S block, दिस इज P block. ये ग्रुप्स है इसके. कौन से ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व है? ग्रुप्स ये पी ब्लॉक. उसके बाद में डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक में है आपके 3 to 12. तो ऐसे तरीके से ये पूरा बन जाता है. तो डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? और देखो, द ग्रुप 3 to 18 constitute the D block, while the lanthanide and actinide series at the bottom forms F block. तो इसके नीचे ये 2 सीरीज है, इसको क्या कहेंगे हम? F block. दिस इज योर F block. तो SPDF ऐसे ये बन गया. अभी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे इसमें. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक, दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट.
A zigzag line can be drawn in the p block of periodic table. Three traditional type of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line. Metalloid The metalloid elements lie along the border of this zigzag line. All the metals lies on left side of the zigzag line and all the non-metals lies on the right side. तो ब्रॉडली अगर कहा जाए तो यहाँ हम जब पिक्चर देखते हैं इसका तो वो पिक्चर में हम लोगों को दिखाई देता है. यू कैन सी ये लेफ्ट में जो भी है वो सारे मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स है और ये जिगजैग लाइन है, इसके अलोंग क्या है मेटलॉइड्स है. तो यहाँ से हमको तुरंत समझ में आता है, ये आप देख सकते हैं कि ये जिगजैग लाइन यहाँ बन रही है. तो इसके अलोंग जो भी है वो मेटलॉइड्स है, इसके लेफ्ट में जो भी है वो मेटल्स है और राइट में जो है वो नॉन मेटल्स है. ये आपका एफ ब्लॉक है. अब यहाँ पे देख सकते हैं एस ब्लॉक, इसमें एक और दो, दीज आर टू ग्रुप्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक. उसके बाद में हम पी ब्लॉक देखते हैं 13 to 18. उसके बाद में बीच का है डी ब्लॉक और नीचे का एफ ब्लॉक. तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 क्या हो गया इसके पीरियड्स. इसके बाद में ये एफ ब्लॉक आता है. तो यहाँ इस पूरे एरिया में आपके मेटल्स दिखेंगे, इसके अलोंग जिगजैग के अलोंग मेटलाइट्स दिखेंगे और इसके राइट साइड में आपको नॉन मेटल्स दिखेंगे. ऐसा इसका पूरा अरेंजमेंट है. अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स. Within a period, the neighboring elements differ slightly in their properties, while distant elements differ widely in their properties. The element in the same group shows similarity and gradation in their properties. These characteristics of group and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements. It is the electronic configuration of the element which decides the group and the period in which it is to be placed. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका जो भी एलिमेंट है उसने कहाँ रहना चाहिए, किधर रहना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए. ये आप देख सकते हो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग एलिमेंट्स आपके लिखे हुए, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं. अब देखते हैं हम लोग ये क्लासिफिकेशन कैसे किया है और इसका यूज़ क्या है. वो कुछ चीज़ें इंडिकेट करती, कुछ ट्रेंड्स बताती है, वो सारे ट्रेंड्स हम लोगों को स्टडी करने के. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है. नाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्किली मेटल इज द सेम. अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं एक ग्रुप के. अब जैसे ग्रुप 1 में दिया है आपको दैट इज द फैमिली ऑफ अल्किली मेटल्स इज सेम. अब ये जो है ये सारे के सारे क्या है अल्किली मेटल्स. और अल्किली मेटल्स में क्या हो रहा है, सब तरफ आपको दिखेगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर नॉट चेंज, सेम. तो ये एक खासियत है ग्रुप 1 की. अब यही कैरेक्टर जो है वो आपको थ्रू आउट पूरे टेबल में आपको दिखाई देगा. जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम इन, that is the family of. Similarly, if you look at elements from any other group, you will find that the number of their valence electron to be same. For example, the elements beryllium, magnesium, calcium belong to group 2, that is the family of alkaline earth metal. तो group 1 को क्या कहा गया alkali metals, group 2 को क्या गया alkaline earth metals, and there are two electrons in the outermost shell. अब आप देखिए यहाँ पहले ग्रुप में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में. दूसरे इसमें क्या हुआ, दूसरे ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दो. तीसरे ग्रुप में कितने रहेंगे, तीन. फोर्थ ग्रुप में फोर, इसमें फाइव. सो ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो प्री डिसाइडेड रहेगा. अगर वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ एक. इसमें अगर ग्रुप 2 में है तो दो, ग्रुप 3 में है तो तीन, और ये ऐसा ट्रेंड इसको लगेगा. There are two electrons in the outermost shell of second group. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of the elements such as fluorine, chlorine from group 7, group 17. That is the family of halogens.
while going from top to bottom within any group and इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम। अभी देखो इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे अलॉन्ग विथ डाउन द ग्रुप। जैसे आप यहाँ से नीचे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक शेल दिखाई दिया था, यहाँ दो दिखाई देंगे, यहाँ तीन चार पाँच, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे। तो ये बातें हमको यहाँ बताई गई है। अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स, हाउएवर द नंबर ऑफ द शेल्स इज सेम। अभी अगर आप एक पीरियड चूज करते हो तो एक पीरियड चूज करने के बाद क्या हो जाएगा, पीरियड मतलब क्या, रोज। जैसे मैंने बताया था कि पीरियड्स रोज में चलते हैं और ग्रुप्स कॉलम्स में। तो अगर आप एक रो देखते हो तो रो मतलब पीरियड देखते हो तो क्या होता है कि इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। यहाँ पे ग्रुप में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा पीरियड्स में शेल्स बढ़ेंगे नहीं, शेल सेम रहेगा, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग वन बाय वन। जैसे यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये चीजें हमको क्या बताती है पीरियड्स में कि जो नेक्स्ट एलिमेंट रहता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, उसके नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। तो इसमें से हम लोग ये समझ में आता है हम लोगों को कि हर पीरियड बराबर एक एक से एक इलेक्ट्रॉन, हर पीरियड में हर एक एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है जैसे आप लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हो। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए किसी एलिमेंट, और शेल्स भी डिसाइड करते हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं। यही हम लोगों को देखने का है कि आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो ये इसी पे से पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा आइडिया तो आप लोगों को आ गया होगा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है और ऐसा क्या फर्क पड़ता है कुछ चीज़ों में। तो इसमें क्या हमको बात समझ में आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने हैं उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, उसमें शेल्स कितने हैं, ये सारे डिसिसिव फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ही एलिमेंट के प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और यही बात हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हैं। अब यहाँ अब देखिए we can say that the elements in the same number of shell occupied by the electrons belong to same period। अब यहाँ पे शेल्स चेंज ही नहीं हो रहे पीरियड्स में, तो क्या हो जाएगा, एक ही शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स चलते जाएंगे, शेल बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ पे लिथियम में आप देखो 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, उसी शेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं। पर आप लिथियम और सोडियम इनका कंपैरिजन करते हैं तो लिथियम और सोडियम में यहाँ पे 2 शेल्स है और यहाँ पे 3 है, और पोटेशियम अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 दिखाई देंगे। तो ये रिजल्ट किस बात के लिए कि जैसे हम ग्रुप से ट्रेवल करते हैं नीचे तो आपको ग्रुप में क्या दिखाई देता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कांस्टेंट रहेंगे। आप देखिए लिथियम में भी एक है आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम में भी एक है और पोटेशियम में भी एक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब वैसे ही आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 शेल्स है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सब तरफ 2 ही शेल्स दिखाई देंगे आपको। बट जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये डिफरेंस हम लोगों को दिखाई देता है। अब ये तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्लेस किए गए, शेल चेंज हो रहा है क्या, या फिर उसमें शेल ना चेंज होते हैं सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं क्या। तो इसका इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है ये हम लोगों को देखने का। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड के बारे में और कुछ कहा है। When we say that the elements with the same number of shells occupied by electrons belong to same period, the elements in the second period, namely lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, have electrons in the two shells K and L. The elements in the third period, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, have electrons in the three shells K, L, M.
तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे। पर अलोंग द पीरियड शेल कांस्टेंट रहेंगे, बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको शेल के नाम दिया है, शेल का नाम है के। यहाँ पे वैल्यू है एन का 1, मतलब के इज द फर्स्ट शेल, सो उसका नंबर 1 दिया है हमने। एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी रहती है हर शेल की, वो इस फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है, 2n²। अब यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1² मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वहाँ पे 2। उसके बाद में l में कितने रह सकते हैं, l का n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 8। उसके बाद में m है, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3² दैट इज इक्वल टू 18, और n इज इक्वल टू 4, तो ये अगर 2 × 4² दैट इज 32। तो ये शेल्स के नाम है और इसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी यहाँ पे हमने दी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको 2n²। ये 2n² के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किस शेल में। अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं। वैलेंसी, you find you have learned in the previous standard that the valency of element is determined by the number of electron present in the outermost shell of its atom, that is valence electron। वैलेंसी कैसे डिसाइड की जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड की जाती है। तो अभी आप देखो सिंबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। सिंबल क्या है ये आपका के 19। 19 क्या इंडिकेट करते हैं, 19 इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए देखो, 2 8 8 1, ये कितना हो गया 19। इसकी वैलेंसी कितनी है, ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, सो इट्स वैलेंसी विल बी 1। अभी ऑटोमिक साइज कैसे, you have seen in the previous standard that the size or volume is a fundamental property of matter। Size of the atom is indicated by its radius। Atomic radius is the distance between nucleus of the atom and the outermost shell। जैसे हमने रेडियस का जो कॉन्सेप्ट देखा है, वो रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द सेंटर, तो सेंटर से ये सर्कल पे का पॉइंट कितने दूरी पे है, वो हम लोगों को रेडियस बताता है। तो उसी तरीके से एटम में होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कितना दूर है, दिस इज कॉल्ड रेडियस और एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस से क्या है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। और ये कितने होते हैं, ये पिकोमीटर्स में होते हैं। पिकोमीटर्स मतलब क्या, 10⁻⁻12 मीटर्स इज अ पिकोमीटर। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दी है पिकोमीटर्स में कुछ एलिमेंट्स की, जैसे ऑक्सीजन की 66 पिकोमीटर्स है, बोरॉन की 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, बेरिलियम 111, लिथियम 152। तो ये क्या हो रहा है, इसका ये बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। You will find that the atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period, and the reason behind this is as follows। अभी देखो, अब कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी की है कि कैसे, अब जैसे ग्रुप आपने एक सिलेक्ट किया, तो ग्रुप में क्या होता है, एंड व्हाट अबाउट पीरियड, पीरियड में क्या होता है। तो ग्रुप में जैसे, पीरियड में जैसे आप यहाँ से इधर जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, ऑटोमिक रेडियस क्या होता है, इस रिड्यूसिंग, कम होता है, डिक्रीज होता है। ये ऑटोमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेफ्ट है और यहाँ राइट है एक्सट्रीम, तो आपको ये बात पता चलेगी कि ऑटोमिक रेडियस डिक्रीज होते जाता है। तो ये क्यों होता है डिक्रीज, इसके पीछे भी रीज़न है। अब आप देखिए, ये रीज़न ऐसा है कि जैसे आपने ये देखा कि ये क्या है आपका एटम है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने निकाल के दिया आपको, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने अभी देखा कि शेल्स की संख्या पीरियड्स में चेंज नहीं होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शेल उतना ही रहेगा, दो ही शेल रहेंगे आपके। अगर आप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में कितने शेल्स रहेंगे, दो शेल्स रहेंगे सिर्फ, पर वो दो शेल में ही आपका एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए,
सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 3। फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में है 1। फिर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो ये कितना आता है? 2 2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट शेल में भी 2 और सेकेंड शेल में भी 2। बोरॉन की बात करते हैं तो 2 3 आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड शेल में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है तो आपको ये बात तो पता है कि ऑटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? ऑटम में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? एक रहता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 हो गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हरदम सेम रहते हैं, दे आर नॉट डिफर। सिर्फ इनका जो पोजीशन रहता है, ये एटम में कहाँ रहते हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ये। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। अब इसमें तो न्यूक्लियस के बाहर रहने के कारण अभी हम थोड़ा सा एक बेसिक पिक्चर देखते हैं। ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया फर्स्ट शेल, मान लो ये हो गया सेकंड शेल, यहाँ पे 1 2 3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ का हो गया? ये बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बी। तो कितने प्रोटॉन इसके अंदर रहने चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये 5 आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 5। मतलब ये बैलेंस हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रिकली ये बैलेंस हो गया। तो चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज, इट्स द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट इसमें होता क्या है? अब जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बन हो जाएगा। इसमें और इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसी चीजें जाती जाएगी। तो ऑटोमिक रेडियस का और इसका क्या रिलेशन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोमिक रेडियस कैसे अफेक्ट करती है। अब आप देखिए, यहाँ जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहेंगे। जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ते जाती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज एज यू कीप ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका पावर भी बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज भी बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अब पता है आपको कि ये अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देर इज अ नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्टिकल्स। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो ये अंदर की ओर खींचे जाएंगे ऐसे, और जैसे अंदर की ओर खींचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको ये इलेक्ट्रॉन या ये शेल जितना पास आएगा न्यूक्लियस के उतना क्या हो जाएगा? रेडियस कम होते जाएगा। आप यहाँ देखिए कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे आप लिथियम से आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे उसका एटॉमिक रेडियस कम होते जाएगा। ये कम क्यों हुआ? ये कम होने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वैसे वैसे न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जाता है, चार्ज बढ़ते जाता है। तो चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? वो ये सारे शेल्स को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए, you will find that the number of valence electron is different. However, the number of the shell is same. You will find that while going from left to right within period, the atomic number increases one by one at a time, and the number of valence electron also increases one by one at a time. तो इसमें रीजन क्या है? अभी जैसे हमने एटॉमिक रेडियस, सॉरी, एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये क्या कह रहा है? यू विल फाइंड दैट द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right within a period.
The reason behind this is as follows. While going from left to right within a period, the atomic number increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electrons get added to the same outermost shell. Due to increased nuclear charge, the electrons are pulled toward the nucleus to a greater extent and thereby the size of the atom decreases. इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उसी वक्त यहाँ पे भी एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। तो प्रोटॉन ऐड हो जाने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इट विल ट्राई टू पुल नियरर। अब ये जो शेल है इसको पास में पुल करने की कोशिश करेगा, पुल करेगा अपने तरफ ज्यादा फोर्स से, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो अब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैसे ही न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल पुल द आउटर मोस्ट शेल विथ ग्रेटर पावर टूवर्ड इटसेल्फ। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ ये बढ़ जाएगा, ऑटोमिक रेडियस कम हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा और ऑटोमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो ये आपको रीज़न मेंशन किया है यहाँ पे कि ये ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया आपको और ये रीज़न भी दिया है यहाँ पे। सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियस आर गिवन बिलो। ये आपको दिखता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, आरबी, सीएस एंड लिथियम। तो ये देखिए, सोडियम पोटेशियम का इतना है, सोडियम का इतना, और ये सारे के सारे पिकोमीटर्स में होते हैं। पिकोमीटर्स मतलब क्या, 10⁻⁻12। अब आगे देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या है, इट इज सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड द लेफ्ट। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों की, लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, मेटल्स, राइट साइड में क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स, और बीच में एक जिगजैग लाइन रहेगी, उस जिगजैग लाइन के अलोंग क्या रहेगा, मेटलॉइड्स। तो it is seen that the metallic elements like sodium, magnesium are toward the left. The non-metallic elements such as sulfur, chlorine are toward the right, and the metalloid element silicon lies in between these two types. A similar pattern is observed in other periods. तो zigzag line क्या करती है, दिस zigzag line will separate metals from non-metals, और metals और non-metal के बीच में कौन सी कैटेगरी होती है, मेटलॉइड। तो अब देखते हैं हम लोग, लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक chemical properties of metal and non-metal. It is seen from the chemical formulae of the simple ionic compound that the cation in them is formed when the metal from a metal while the anion is formed from non-metal. अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है NaCl। तो Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। सोडियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, एट लेफ्ट, इसका पोजीशन लेफ्ट में, और क्लोरीन का कहाँ है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर थंब रूल, लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल्स, और राइट में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज देखो, आपको पता है कि यहाँ से क्या फॉर्म होता है, कटायंस, और यहाँ से क्या फॉर्म होते हैं, अनायंस। अब अनायंस और कटायंस को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कटायंस क्या होता है, दोज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। कटायन डोनेट करता है और अनायन एक्सेप्ट करता है। अब ये आप इसमें भी पढ़े आयनिक, इसको क्या कहता है, आयनिक कंपाउंड NaCl। Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8,1, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8,7। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या है, मेटल्स में कौन सी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और नॉन मेटल्स में कौन सी होती है टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो मेटल क्या फॉर्म करेगा, मेटल फॉर्म करेगा आपका कटायन, और नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा, अनायन। तो यहाँ ये दिया है कि केमिकल फॉर्मूला, कटायन इन देम। अब देखो, let us compare the chemical properties of metals and non-metals. It is seen from the chemical formula of a simple ionic compound
that the cation in them is formed from metal and anion is formed from non-metal. ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया. From this, it is understood that the metal atoms have a tendency to form cation by losing valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है या लूज कर देता है, उसके कारण ये क्या कटायन फॉर्म करता है. और अनायन क्यों फॉर्म होता है? तो इसी देखो इस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर नाम भी है कि जो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसमें क्या सी प्रॉपर्टी रहती है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. नेगेटिविटी. तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. On the other hand, an atom of the non-metal have a tendency to form anion by accepting the electrons from outside. We have already seen that the ions have a stable electronic configuration of metal, noble metal. How is the ability to lose X or accept electrons in the valence shell determined? All the electrons in any atom are held by attractive force exerted on them by positively charged nucleus. The electron in the inner shell lie in between valence shell and nucleus. Because of their presence, the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge, and thus the number of valence electron in the metal is small, 1 to 3, and also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. As a combined effect of these two factors, the metals have tendency to lose valence electron to form cations, while the stable cations having a stable noble gas configuration, and this tendency of the element is called electropositivity, is the metallic character of that element. अब देखिए यहाँ पे ये होता क्यों है, ये भी हम लोगों को देखना है कि वाई मेटल यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. मेटल क्यों? देखो जैसे हमने ये न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के बाहर ये एक शेल है, फर्स्ट शेल, जिसके बाहर में और एक शेल है, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जैसे इसने कहा है कि नंबर ऑफ शेल्स जैसे बढ़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसा होता क्या है कि चलो मान लो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, इस पे भी डिपेंड करेगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बीच में कितने शेल्स हैं. जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर और एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है. इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ये कितने दूरी पे है और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेल्स है. अब आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन में एक शेल और उसके बाद में न्यूक्लियस है. आप जानते हो कि इसमें भी कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, और इसमें भी निगेटिव चार्ज. लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर. लाइक चार्ज रिपेल करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब फोर्स एक्सर्ट होता है तो साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है. तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट इज ऑल राइट. बट ये जो इन बिटवीन इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको अपने से दूर पुश करने की कोशिश करेगा और न्यूक्लियस अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा. एज अ रिजल्ट जो नेट फोर्स लगना है न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा. और जैसे जैसे इसके अंदर शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये नेट फोर्स कम होते जाएगा. अब नेट फोर्स अगर कम होते जाएगा तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, निकल जाएगा बाहर. क्यों निकलेगा बाहर? क्योंकि इस पे जो फोर्स लगना है, अब अगर आप दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो, कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है. पर इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो पुल चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में ये जो पुल रहेगा ये कम रहेगा. इसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इनके बीच में और कोई
इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट अवे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। पर इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये शेल आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नेट पुलिंग फोर्स जो लगना चाहिए वो कम होते जा रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स तो है पर माइनस ये रिपल्सिव फोर्स भी करना पड़ेगा आपसे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो नेट, या इसको हम बोलेंगे कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कम हो जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये छूट सकता है, यहाँ से निकल सकता है बाहर। अगर निकल सकता है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड दिस इज मेटालिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे आपको दिया है पीरियोडिक ट्रेंड्स में कि ये सारे क्या है, मेटल्स है, ये मेटलॉइड्स है, और जो ये ग्रेइश कलर में दिए है ये क्या है, नॉन मेटल्स है। तो क्या होता है, देखो ये चार्ट आपको बहुत क्लियरली कुछ प्रॉपर्टीज बताता है कि जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑटोमिक रेडियस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑटोमिक रेडियस कम होते जाएगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। आप यहाँ अगर देखते एक्सट्रीम लेफ्ट को तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि इसका ऑटोमिक रेडियस बड़ा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पर जैसे आप यहाँ से एक बॉक्स आगे चलते हो तो ये कैरेक्टर कम होते जाएगा, जैसे कि इसका रेडियस कम होते जाएगा, उसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी। ये अब अगर हम पीरियड्स में आते हैं तो पीरियड्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे जाएंगे तो वैसे क्या होता है, ऑटोमिक रेडियस बढ़ता है। अब ऑटोमिक रेडियस क्यों बढ़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जैसे हम पीरियड्स में नीचे जाते हैं तो नीचे जाते जाते क्या होता है, उसमें एक एक शेल ऐड होते जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में क्या रहेगा, एक ही शेल रहेगा, ओनली वन शेल, आई एम सॉरी, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल रहेगा। सेकेंड पीरियड में अगर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें और एक शेल बढ़ जाएगा, ये तो पहले था ही, और एक शेल बढ़ गया। थर्ड पीरियड में जाएंगे तो वहां पे कितने शेल्स रहेंगे, देयर विल बी 3 शेल्स। तो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, जैसे आप ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका रेडियस भी बढ़ते जाएगा। तो ऑटोमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा व्हेन यू विल गो डाउन द ग्रुप। सेकेंड थिंग, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑटोमिक रेडियस बढ़ेगा। ऑटोमिक रेडियस बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों कम होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ से नीचे आए, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फर्स्ट में एक ही चेल था, सेकंड में दो, और थर्ड में 3। अब देखिए इसमें ये यहाँ न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस मान लेते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए ना, सबसे फाइनल शेल में, सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आप देखिए, अगर आप पॉसिबिलिटी निकालते हो तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, थोड़ी कम रहेगी। कम इस बात के लिए रहेगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। बट उसी कंडीशन को यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे है और ये शेल और बीच में है, तो इसमें जो नेट पुल लगना है वो कम हो जाएगा। और नेट पुल अगर कम लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या इजीली ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अब इसी कंडीशन को हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा बेहतर कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूरी पे चला गया है न्यूक्लियस से, तो इसका जो नेट पुल है ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करना किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएगा। उसी के साथ ऑटोमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। ऑटोमिक रेडियस के बढ़ने के कारण ही मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है डाउन द ग्रुप, ये बात है। एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या बढ़ना है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ग्रेडेशन देखेंगे, ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली।
Group 17 contains number members of halogen family. All of them have a general formula X2. A gradation is observed in their physical property, physical state down the group. Fluorine, chlorine are gases, bromine is liquid and iodine is solid. तो हमको सिर्फ ये है, तो इसको हम लोग हेलोजन फैमिली को जरा कंसिडर करेंगे। सबसे ऊपर हेलोजन फैमिली में लेता है फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्या रहेगा क्लोरीन, फिर उसके बाद में रहेगा ब्रोमीन और रहेगा आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, दीज टू आर गैसेस। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा ब्रोमीन, ये है लिक्विड, और ये क्या है, दिस इज सॉलिड। मतलब फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड, ये आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कौन सा मेटल रहेगा, कौन सा नॉन मेटल रहेगा, कौन सा एलिमेंट कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है वैलेंस शेल में, वैसे वैसे हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं किसी भी ऑटम में, वैसे वैसे भी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। तो अभी के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड में इतना ही है। इसके आगे की स्टडीज आपको 11th 12th में है, और उसमें भी आगे आप पढ़ सकते हो ग्रेजुएशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने क्या देखा, हमने दो मेंडेलीव देखा, न्यूलैंड्स देखा, डोब्रिनर देखा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, उसमें कैसे ट्रेंड्स चलती है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ये ओवरऑल इजी है चैप्टर। साथ साथ कैसा है कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है और अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है। और ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लॉक्स, और कैसे करेक्टर चेंज होता है। लेफ्ट में मेटल्स रहते हैं, राइट में नॉन मेटल्स रहते हैं, जिगजैग लाइन के अलोंग मेटलॉइड्स रहती है, फिर एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स रहते हैं नीचे, जैसे दो सेपरेट ये दिए हैं आप लोगों को रोज। तो ये SPDF में क्लासिफिकेशन होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर इम्पोर्टेंट। ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है आपको यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो डू लाइक आवर चैनल, subscribe and share it. Thank you.